السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مہلک وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، جبکہ ایک ہی دن میں 1245 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ حکمرانوں نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ کرپشن بری چیز نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں قوم فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے، ایک طرف قوم دوسری جانب ڈاکو مافیا کھڑا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں خفیہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ سینیٹ انتخابات کے حوالے سے کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے۔ عوام کی جیبوں پر ایک مرتبہ پھر 9 ارب روپے سے زائد کا ڈاکہ ڈالنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر توانائی نے ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا۔ راجہ پرویز اشرف بولے آئندہ بل ادا کرنا ہے یا نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون۔ نواز شریف نے آصف زرداری کو یوسف رضا گیلانی کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ نوٹو، لوٹو اور بوٹو کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ سراج الحق کہتے ہیں حکومت مصنوعی آکسیجن پر ہے، آکسیجن ہٹاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ PSL 6 میں چوکوں چھکوں کی برسات کا وقت قریب، شائقین کرکٹ ایکشن کے منتظر۔ شائقین کی آمد پر کورونا پروٹوکولز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ادارے سرگرم ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,37,497 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 21,498 ہو گئیں، 7,83,412 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو حکومت کا کورونا وائرس کے خلاف جدید شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ، $2.5 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے 2021 بجٹ کی منظوری دے دی۔ طبی ماہرین کی لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت۔ شہر کے شیلٹر ہوم میں کورونا کی خطرناک قسم کی موجودگی کی تصدیق۔ کینیڈا نے میانمار کے حکمران جرنیلوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں، گرفتار سیاسی رہنماؤں کو آزاد کیا جائے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، نظام زندگی متاثر۔ لوزیانہ میں 10 لاکھ افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ امریکہ بھر میں برفانی طوفان کے سبب اموات کی تعداد 36 تک جا پہنچی۔ کشیدگی سے متعلق افواہیں زائل، جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کی سلامتی اور امریکہ اسرائیل پارٹنرشپ کے تمام پہلوؤں کو مستحکم کرنے کا عہد کیا ہے۔ افغان امن عمل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اشرف غنی کو ٹیلی فون۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کے سیاسی اور دیرپا حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ناسا کا خلائی مشن کامیابی سے مریخ پر لینڈ کر گیا۔ کامیاب لینڈنگ مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ لینڈنگ کا سگنل ناسا کو موصول ہونے میں 11 منٹ لگے۔ کرونا وائرس سے دنیا میں 11 کروڑ 8 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 24,52,582 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، 8,57,77,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ شنیرہ کو جمائمہ کی فلم کا بے صبری سے انتظار۔ جمائمہ نے فلم کی کہانی اپنی اور عمران خان کی شادی اور محبت سے متاثر ہو کر لکھی ہے۔ فلم ایک کامیڈی لو اسٹوری ہے۔ PSL کے گانے گروو میرا کی یوٹیوب پر لمبی چھلانگ۔ ایک ہفتے سے زائد یوٹیوب کی ٹریڈنگ لسٹ پر قبضہ جمانے کے بعد دوسرے نمبر پر ترانے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 40 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,527 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,68,506 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,245 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,66,242، سندھ میں 2,55,039، خیبر پختونخوا میں 70,493، بلوچستان میں 18,967، گلگت بلتستان میں 4,947، اسلام آباد میں 43,145، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,673 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 86,02,515
15 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,754 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,31,840 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,626 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,527 हो गई। पंजाब में 5,166, सिंध में 4,267, खैबर पख्तूनख्वा में 2,020, इस्लामाबाद में 488, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 285 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सबसे महंगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसहाक डार के वालिद की लगता है साइकिल की नहीं, रोल्स रॉयस की दुकान थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों ने ऐसी फिजा बना दी कि करप्शन बुरी चीज नहीं रही। हमें सबसे ज्यादा नुकसान करप्शन ने पहुंचाया। जब वज़ीर आज़म और वज़रा करप्शन करें तो मुल्क तबाह हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन से भी बड़ा जुर्म है। मुल्क तबाह करता है। एक मुल्क तबाह तब होता है जब उसका वज़ीर आज़म और उसके वज़ीर करप्शन करनी शुरू कर दे, तब मुल्क तबाह होता है। और ये क्यों, अब ये जरा सुन लें, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। आपको समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा। मैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब मैं पैसा चोरी करता हूं तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं वो पैसा मुल्क से बाहर लेके जाऊं, नहीं तो लोगों को नजर आ जाएगा। इसलिए मैं चोरी करता हूं। पहला नुकसान, उस चोरी के पैसे को जब मैं मुल्क से बाहर भेजता हूं तो मैं उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मियांवाली में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि अक़ामा लेकर बैरून मुल्क पैसे भेजने से मुल्क कमज़ोर होता है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सबसे महंगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसहाक डार के बाप की लगता है साइकिल नहीं, रोल्स रॉयस की दुकान थी। इमरान खान का ये भी कहना था कि सियासतदानों को खरीदने के लिए सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है। जमहूरियत में भी कोई पैसे देकर आता है, रिश्वत देकर सेनेटर बनता है, अरकान के वोट खरीदे जाते हैं। करोड़ों खर्च करके सेनेटर बनने वाला क्या आवाम की खिदमत करेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कौम फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कौम, दूसरी तरफ डाकू माफिया खड़ा है। सियासतदानों की कीमतें लग रही हैं। 30 साल से सियासतदान बिक रहे हैं और सब जानते हैं। हम कह रहे हैं ओपन बैलेट हो, दीगर जमातें खुफिया बैलेटिंग का कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतनासिब नुमाइंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। बैनुल-सूबाई इत्तेहाद भी हो तो खुफिया रखना क्यों ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि वोटर्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक जमा करवा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सेनेट के क़याम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। पार्लिमानी निज़ाम में दोनों ऐवान कभी इत्तेफाक राय से नहीं चलते। लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में निशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कई बार सियासी जमातें दूसरे सूबे की जमातों से भी एडजस्टमेंट करती हैं। बैनुल सूबाई इत्तेहाद भी हो तो खुफिया रखना क्यों जरूरी है। रजा रब्बानी ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है। PTI ने सेनेट में काफ लीग को भी सेनेट निशिस्त दी है। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में 92 पैसा फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। इससे कबल भी बिजली की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया गया और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसके बाद बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। CPPA ने दरख्वास्त की है कि जनवरी में 7 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 51 अरब 66 करोड़ रही। बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत का तखमीना 5
₹5.75 फी यूनिट लगाया गया था। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि माजी की हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है और अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कबल अजी पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान कहते थे बिजली के बिल ना दो और वो बिल फाड़ देते थे। जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट ₹8 का था, आज ₹28 यूनिट है। स्पीकर मुझे बताएं कि मैं बिजली का बिल दूं या ना दूं, ये सवाल आपसे है। साबिक सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। साबिक सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत हासिल कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया, जिसमें नवाज शरीफ ने जरदारी को यूसुफ रज़ा गिलानी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने PDM प्लेटफॉर्म पर सेनेट इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू की। टेलीफोनिक राब्ते में नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया। गुफ्तगू में सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं में खैबर, KPK और दीगर सूबों से सेनेट उम्मीदवारों पर मशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लॉन्ग मार्च के तरीक़ाकार और हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई और यूसुफ रज़ा गिलानी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मशावरत हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PDM वालों ने अपनी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। शहजादों और शहजादियों की सियासत से अवाम को कुछ नहीं मिलना। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन में असेंबलियों और सेनेट के लिए एक कानून होना चाहिए। हम मुल्क में नोटों, लूटों और बूटों की सियासत का खात्मा चाहते हैं। PDM वालों ने अपनी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। मानसहरा में ज़राइब लाक़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान सिराजुल हक का ये भी कहना था कि हुकूमत मसनूई ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन हटाते ही खत्म हो जाएगी। PDM और PTI की सियासत में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सियासत चंद शख्सियात के गिर्द घूमती है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि इलेक्शन में असेंबलियों और सेनेट के लिए एक कानून होना चाहिए। हम मुल्क में नोटों, लोटों और बूटों की सियासत का खात्मा चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि PDM वालों ने अपनी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। शहजादों और शहजादियों की सियासत से आवाम को कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। मेगा इवेंट में बरतरी की जंग लड़ने के लिए टीमें बेताब हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शायकीन क्रिकेट गैर मुल्की और मुल्की क्रिकेट स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। शायकीन की आमद पर कोरोना प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारे सरगर्म हैं। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस सेशंस किए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रैक्टिस मैच में मुकाबिल हुए। स्क्वाड्स की प्रैक्टिस और मैचेस के तयशुदा शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई। नए प्रोग्राम के तहत टीमों ने नेशनल स्टेडियम का रुख करते हुए भरपूर मशकों का सिलसिला जारी रखा। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस सेशंस किए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने हनीफ मोहम्मद बाई परफॉर्मेंस सेंटर के ग्राउंड पर इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। तैयारियों की जांच के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रैक्टिस मैच में मुकाबिल हुए। दूसरी जानिब टीमों की जानिब से बुलंद अज़ाइम का इजहार का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।